Hello everyone, I am Sachin, and in this video lecture we are going to discuss about resonance effect, the concept of resonance. We study this topic in GOC, General Organic Chemistry. So in this video lecture we are going to understand the complete concept of resonance. We will see how to draw the resonance structures, and in the later part we will also see stability comparison between the different resonance structures. So starting with the very basic, if I talk about the ozone molecule, we are understanding how the concept was introduced. So talking about the ozone molecule, if I draw the Lewis structure of this molecule, it will be like this. From this structure, this is this is bond length of it, this is bond length A, this is bond length B. So from this structure, this is very clear that A should be less than B, as this is double bond and this is single bond. So this A should be less than B. But experimentally we have found that all the bond lengths are equal, means A equals to B. Experimentally we have found that A equals to B, both bond lengths are equal. Another example, we have a benzene. From this structure, if I say this is A, this is B, from this structure it is very clear that A should be less than the B. Alternate double single, but experimentally we have found that all the bond lengths are equal. Experimentally all bond lengths are equal. So how we will explain all these? So the concept of resonance was introduced. मैं एक लाइन में बता देता हूँ कि रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है, फिर मैं डिटेल्स में हम सारी चीज़ें देख लेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है. ठीक है, देखो रेजोनेंस इफेक्ट में होता क्या है, जब किसी भी मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर इज नॉट इनफ टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल, तो हम रेजोनेंस इफेक्ट को, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस को पिक्चर में लेके आते हैं. हम क्या बोलते हैं कि उसी सेम मॉलिक्यूल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, और वो डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करती हैं सेम मॉलिक्यूल की, और वो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको हम कैनोनिकल फॉर्म्स बोलते हैं, और वो डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स एज पर देयर स्टेबिलिटी कंट्रीब्यूट करती हैं रेजोनेंस हाइब्रिड में, और रेजोनेंस हाइब्रिड कंप्लीट प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता है मॉलिक्यूल की. सो समझते हैं इस बात को. अगेन टॉकिंग अबाउट ओजोन, इफ आई ड्रॉ द अनदर लुईस स्ट्रक्चर ऑफ दिस molecule, so will be like this: double bond single minus plus. This is the canonical form first, this is the canonical form second. So if I draw the resonance hybrid of all these canonical forms, so will be like this. कैनोनिकल फॉर्म्स का रेजोनेंस हाइब्रिड देखो बनाते कैसे हैं, दोनों फॉर्म्स का कंट्रीब्यूशन लेके हम एक फाइनल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें कि सारी प्रॉपर्टीज, जिससे कि सारी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्लेन हो जाती हैं. देखो मैं अगर इसको 1 2 3 बोल दूं, 1 2 3 बोल दूं, तो इस कैनोनिकल फॉर्म में 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड था, उसमें 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है. तो मुझे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें दोनों के बीच, मतलब कहने का मतलब हो क्या रहा है, जो डबल बॉन्ड है ये डीलोकलाइज कर रहा है. कहने का मतलब जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो दोनों के बीच में है. ठीक है, तो मैं इसको दिखाता कैसे हूँ, मैं इस तरीके से दिखाता हूँ. दोनों के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है, तभी बॉन्ड लेंथ इक्वल है. ठीक है, अब देखो 1 पे क्या था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 पे, यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन पे माइनस है, यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन पे माइनस है, मतलब 1 पे 3 पे दोनों पे ही माइनस है. तो मैं इसको दिखाता हूँ पार्शियल माइनस से. ठीक है, ऑक्सीजन नंबर 2 पे पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, तो इसको मैं दिखाता हूँ पार्शियल पॉजिटिव से. एंड दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड. ये क्या है, हाइपोथेटिकल. ये क्या है, हाइपोथेटिकल, काल्पनिक. ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड. मींस this structure resembles to the actual structure of the molecule, and now this structure will explain all the properties of the ozone molecule. How? Between 1 2 3, between 1 and 2 same electron density, same partial double bond character. Between 2 and 3 same partial double bond character. So talking about benzene, if I draw the another canonical form of this, so will be like this. So this is canonical form first, canonical form second. तो अगर मैं दोनों को मिला के इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहूं तो कैसा होगा,
देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बेंजीन का, मैं क्या देख पा रहा हूँ इस वाले स्ट्रक्चर में, अगर मैं नंबरिंग देखो यहाँ पे कर देता हूँ तो देखो 1 2 3 4 5 6 के बीच में डबल बॉन्ड, और इस वाले में 1 6 5 4 3 2। कहने का मतलब हर एक के पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो मैं इसको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से, और इससे सारी प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल इस बेंजीन की एक्सप्लेन हो जाती हैं। क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, हर सिंगल बॉन्ड के पास है, हर एक के पास इक्वली है, तो ऑल दी बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। सो ये अपना कॉन्सेप्ट हो गया रेजोनेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। उसमें हम करते क्या है कि व्हेन सिंगल स्ट्रक्चर वन स्ट्रक्चर इज नॉट इनफ टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स ड्रॉ करते हैं। वो डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देती हैं रेजोनेंस हाइब्रिड में, और वो रेजोनेंस हाइब्रिड ईच कैनोनिकल फॉर्म एक्सप्लेन करती है अलग अलग प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। वो अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन होता है डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेबिलिटी इन द रेजोनेंस हाइब्रिड, वो उसको हम आगे देखेंगे। अभी तक के लिए हम इतना समझते हैं कि कैनोनिकल फॉर्म्स ड्रॉ करते हैं, उनकी हेल्प से एक हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, जो कि सारी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल की एक्सप्लेन हो जाती हैं उसकी हेल्प से। ये कॉन्सेप्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। अब हम आगे देखते हैं कि हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें मतलब ये जो कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं कैसे ड्रॉ करनी है, उनके कुछ रूल्स हैं, उन्हें फटाफट से देख लेते हैं एक बार जल्दी से। सो हाउ टू ड्रॉ दी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, फटाफट से देख लेंगे भाई लोग। हाउ टू ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर को मैं आरएस बोल दूं या कैनोनिकल फॉर्म्स बोलूं, एक ही बात है, सो टेंशन नहीं लेने का। सो रूल नंबर 1, पोजीशन ऑफ द एटम शुड नॉट चेंज। पोजीशन ऑफ एटम शुड नॉट चेंज। रूल नंबर 2, टोटल चार्ज शुड बी सेम। टोटल चार्ज शुड बी सेम। अभी मैं आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज रूल्स, एक बार लिख देता हूं। टोटल चार्ज शुड बी सेम। रूल नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम। शुड बी सेम। अब देखो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हर एक बात क्या मैं कहना चाहता हूं। C5 एस्टर ये वाला कुछ भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये मैंने एक एस्टर मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है। अब मेरे को इसके रेजोनेंस कैनोनिकल फॉर्म्स ड्रॉ करनी है। आई वांट टू ड्रॉ द कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल। सो करते हैं। ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये यहाँ डिलोकलाइज करेंगे तो यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस आएगा, तो इसकी कैनोनिकल फॉर्म्स विल बी लाइक दिस, माइनस। यहाँ इस वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, उस पे माइनस। अब क्या ये कैनोनिकल फॉर्म्स, ये जो मैं इसको फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको सेकंड, क्या ये कैनोनिकल फॉर्म है या नहीं, इसको मैं वेरीफाई कैसे करूंगा। पोजीशन ऑफ एटम्स शुड नॉट चेंज। क्या कोई भी क्या मैंने एटम को मूव किया है क्या? नहीं, मैंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कराई है, ठीक है, रूल वैलिड है। टोटल चार्ज शुड बी सेम। पहले कितना चार्ज था, 0, अब कितना चार्ज है, प्लस माइनस 0। मैंने बोला टोटल चार्ज, नेट चार्ज शुड बी सेम, पहले भी 0 था अभी भी 0 है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम। पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 0, अभी भी कितने, 0, नो चेंज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पहले भी 0 अभी भी 0, तो दीज बोथ आर कैनोनिकल फॉर्म्स। तो ऐसे मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे मैं एसीटोन की बात करूं, ये एसीटोन मॉलिक्यूल है अपना, इसके मुझे कैनोनिकल फॉर्म्स ड्रॉ करनी है, तो सिंपली मैं ऐसे कर सकता हूं, देखो। और कैनोनिकल फॉर्म्स जब ड्रॉ करते हैं तो ये वाला एरो दिखाते हैं हम, ये दिखाने का तरीका होता है, ठीक है। तो देखो कैनोनिकल फॉर्म्स एक ये भी है, इसकी ऑक्सीजन पे यहां मैंने माइनस दिया, यहां प्लस दे दिया, यहां माइनस। अब सुनना ध्यान से बात को, क्या ये इसकी ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब वेरीफाई करते हैं रूल्स के साथ, क्या ये कैनोनिकल फॉर्म्स हैं या नहीं है, ठीक है। देखो इसको देखो, क्या एटम चेंज हुआ, एटम की पोजीशन चेंज हुई है यहां से आने में, नहीं। चार्ज पहले भी 0 अभी भी 0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले भी 0 अभी भी 0, ठीक है। तो ये कैनोनिकल फॉर्म है क्या, ये इसको देखो, तो हाँ ये भी कैनोनिकल फॉर्म है,
एटम मूव हुआ नहीं, चार्ज प्लस माइनस अभी भी जीरो, बट देखो वहां ऑक्सीजन पे माइनस है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। देखो ये भी कैनोनिकल फॉर्म है, बट हम इसको ड्रॉ नहीं करते हैं क्योंकि ये दिस इज लीस्ट स्टेबल। आगे हम ये देखेंगे कि जो कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं ना, ये कंट्रीब्यूट करती हैं रेजोनेंस हाइब्रिड में एज पर देयर स्टेबिलिटी। इसको तो हम बनाते ही नहीं है क्योंकि इतनी लीस्ट स्टेबल है, कैनोनिकल फॉर्म है बट इसका कंट्रीब्यूशन जीरो होगा, नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म तो बोलेंगे हम इसको, ये है क्योंकि ये सारे रूल्स को वैलिड कर रही है। अब देखो अगर मैं यहां पे ये बना दूं, अगर ये CH3 मैंने उसको होमोलिटिकली तोड़ दिया, ठीक है। अब देखो क्या एटम की पोजीशन मूव हुई? नहीं। क्या चार्ज बदला? पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो नहीं, ठीक है, वैलिड। टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम। पहले कितने थे? जीरो। अब देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। तो दिस इज नॉट द कैनोनिकल फॉर्म। ये बात समझ आई आपको कि कैनोनिकल फॉर्म्स कैसे ड्रॉ करते हैं? ये मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चला कैसे रहा हूं, तो वो कॉन्सेप्ट होता है कॉन्जुगेशन और डीलोकलाइजेशन। ये आगे की चीज है, इसको हम देख लेंगे बाद में, बट ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलाते हैं, ठीक है। तो ये 3 रूल होते हैं, हमें ये 3 रूल ध्यान रखने होते हैं बस रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। सो अब हम देख लेते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड एंड इट्स स्टेबिलिटी विद द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखो मैंने एक बात बोली थी, ये जो कैनोनिकल फॉर्म्स होती है ना, ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं एज पर देयर स्टेबिलिटी। मैं कहना क्या चाहता हूं इसमें समझते हैं इस बात को। मैं यहां पे लेता हूं एसीटोन का मॉलिक्यूल, ठीक है। मैंने इसकी कैनोनिकल फॉर्म्स ड्रॉ कर दी फटाफट से। दीज आर द कैनोनिकल फॉर्म्स, और मैंने इसका साथ के साथ ही हाइब्रिड भी ड्रॉ कर रहा हूं। देखो ये फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म, ये सेकंड कैनोनिकल फॉर्म, एंड दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। कैसे ड्रॉ कर रहा हूं? इस स्ट्रक्चर से क्या पता लग रहा है? इस ऑक्सीजन पे, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है तो पार्शियल नेगेटिव। इससे क्या पता लगा? कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है तो पार्शियल पॉजिटिव। तो ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया मैंने। अब देखो दिस इज हाइपोथेटिकल, ये भी आपका हाइपोथेटिकल है, एंड दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड जो कि क्लोजली रिजेंबल करता है अपने एक्चुअल स्ट्रक्चर को। जो भी मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा उसको क्लोजली रिजेंबल करता है, या मैं बोलूं ये रियल स्ट्रक्चर को क्लोजली रिजेंबल करता है अपना रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो देखो हम करते क्या हैं, ये जो अपनी कैनोनिकल फॉर्म्स होती है ना, ये कंट्रीब्यूट करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड में। तो होता क्या है, मोर द स्टेबिलिटी, जो कैनोनिकल फॉर्म जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी वो रेजोनेंस हाइब्रिड में उतना ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगी। मोर स्टेबिलिटी, मोर कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड। अब हमें करना क्या है, ये जो कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं, जो इन्हीं को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं, इनकी स्टेबिलिटी कंपैरिजन करनी है, कि तभी तो हम कंट्रीब्यूट बता पाएंगे कि कौन सी कैनोनिकल फॉर्म ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, कौन सी कैनोनिकल फॉर्म कम कंट्रीब्यूट करेगी। तो अब हमें यही समझना है कि इनकी स्टेबिलिटी कंपैरिजन कैसे करते हैं। उसके कुछ 3-4 रूल्स हैं, जैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के 2-3 रूल थे, ऐसे ही स्टेबिलिटी कंपैरिजन के अपने 4-5 रूल्स हैं, उनको फटाफट से हम देख लेंगे। और यही टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि कॉम्पिटिशन में हमारा क्वेश्चन दिख जाता है कभी कभी पेपर में। देखो समझते हैं इस बात को। रूल्स हेडिंग लगा देंगे एक बार, रूल्स टू डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ RS या कैनोनिकल फॉर्म्स। क्या कहता है, जो आपकी स्टेबिलिटी होगी ना वो इनवर्सली होती है नंबर ऑफ चार्जेस के। क्या कहना चाहता हूं मैं, स्टेबिलिटी जो होगी इनवर्सली होगी नंबर ऑफ चार्जेस के। कहने का मतलब, अगर मैं ये एसीटोन मॉलिक्यूल आपके सामने यहां बना देता हूं और इसका कैनोनिकल फॉर्म मैंने यहां बना दिया, O पे माइनस कार्बन पे प्लस CH3,
तो स्टेबिलिटी क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ चार्जेस के। कहने का मतलब चार्जेस जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। कहने का मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू चार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, रूल नंबर 1। और ये जो रूल मैं बता रहा हूं ना, इनको प्रायोरिटी इनकी वैसे ही रखनी है, जो पहले बताया वो उसको पहले देखना है। प्रायोरिटी ऑर्डर मैं भी लास्ट में आई विल राइट द प्रायोरिटी ऑर्डर इन लास्ट। सो देखते हैं। तो अगर मैं इस रूल के अकॉर्डिंग जाऊं तो स्टेबिलिटी इनवर्सली है नंबर ऑफ चार्जेस की। यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, +-2। यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, 0। तो फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, फर्स्ट विल बी स्टेबल देन सेकंड। दिस इज योर रूल नंबर 1। नाउ द रूल नंबर 2 is octet rule or total number of bonds। क्या कहना चाहता हूं, देखो अब आपको समझना होगा। ऑक्टेट रूल कहने का मतलब कैनोनिकल फॉर्म्स होंगी, ठीक है। अब उसमें हम ये देखेंगे कौन सी कैनोनिकल फॉर्म्स में ऑक्टेट रूल सभी का कंप्लीट है, तो वो वाली जो कैनोनिकल फॉर्म होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। और इसी को हम नंबर ऑफ बॉन्ड से भी समझ लेंगे, जहां पर टोटल नंबर ऑफ पाई, जहां पाई बॉन्ड्स ज्यादा होंगे वो वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। मैं एग्जांपल से ये ऑक्टेट रूल आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे इस तरफ आ जाइए, ऑक्टेट रूल यहाँ पे देख लेते हैं। देखो एक ये आपका कैनोनिकल फॉर्म है और ये एक मैंने ये बना दी। ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपके पास है, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। बताएं कैसे बताएंगे, तो पहले तो हमें रूल 1 ही देखना है, फिर रूल 2 देखेंगे अभी तक, ठीक है। तो पहले रूल 1 से जाएंगे, तो प्लस इस पे प्लस है, इस पे भी प्लस है, तो रूल नंबर 1 तो वैल्यू टाई कर गया, ठीक है, क्योंकि दोनों ही चार्ज वाले हैं, कोई भी न्यूट्रल नहीं है। अब जाएंगे हम रूल 2 पे, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल से जाएंगे तो हम अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव है तो इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट है क्या, नहीं। तो इस वाले मॉलिक्यूल में ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं है, ठीक है। बट अगर इस वाले में जाते हैं तो इस कार्बन का, इस ऑक्सीजन का, सभी का, मतलब इस वाले केस में सभी का ऑक्टेट रूल कंप्लीट है, ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर होगा मोर स्टेबल होगा देन द फर्स्ट वन। अगर मैं इसी चीज को पाई बॉन्ड से देखूं तो देखो यहाँ पे मतलब बॉन्ड से देखो, पाई बॉन्ड से देखो, किसी से भी देख सकते हो, जहां पे टोटल नंबर बॉन्ड्स ज्यादा हो, या मैं कह सकता हूं पाई बॉन्ड्स ज्यादा हो। बॉन्ड से जाओगे टोटल नंबर बॉन्ड से, तो यहाँ पे देखो कितने बॉन्ड है, 1 2 और ये दो हाइड्रोजन वाले, कार्बन हाइड्रोजन वाले, 4 टोटल बॉन्ड 4 है। यहाँ पे जाओगे तो कितने हैं, 1 2 हाइड्रोजन वाले 2 और ये 2 4 और ये 5, यहाँ पे 5 है। तो टोटल नंबर बॉन्ड से जाओगे तब भी यही वाला सेकंड जीतेगा। टोटल नंबर पाई बॉन्ड से जाओगे तब भी यही जीतेगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड 0, यहाँ पे पाई बॉन्ड 1, तब भी यही जीतेगा। तो कैसे भी समझ सकते हैं इस बात को आप, ठीक है। अब रूल नंबर 3 आपका कहता है लोकेशन ऑफ चार्ज, रिलेटेड टू द लोकेशन ऑफ चार्ज। क्या कहता है ये, इसको समझते हैं जरा। लोकेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि नेगेटिव जो चार्ज होगा वो मोर स्टेबल होगा ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और सही बात है। और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो मोर स्टेबल होगा ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव या लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब रिलेटिव ये चीजें तो रिलेटिव भी एग्जांपल से समझ जाओगे। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं ऑक्सीजन पे माइनस, एन पे माइनस, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ऑक्सीजन पे माइनस, सी पे माइनस, कौन सा ज्यादा होगा, ऑक्सीजन वाला ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। एफ पे माइनस, एन पे माइनस, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, एफ वाला होगा। मतलब माइनस चार्ज जो होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे स्टेबल होगा और पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे स्टेबल होगा। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये रूल नंबर 3 हो गया। आपको अभी एग्जांपल से सारी चीजें हम समझ लेंगे। अब मैं रूल नंबर 4 बता देता हूँ, फिर 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा, टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ चार्ज, दिस इज रिलेटेड टू द सेपरेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है, ये कहता है जो लाइक चार्जेस होंगे ना, लाइक चार्जेस होंगे वो फार अवे जितना होंगे उतना स्टेबल, ठीक है। अनलाइक चार्जेस
मतलब लाइक चार्जेस जितना दूर होंगे उतना स्टेबल, प्लस प्लस रिपल्सन करेंगे ना, माइनस माइनस रिपल्सन करेंगे। तो कहने का मतलब है लाइक चार्जेस जितना फार अवे होंगे उतना स्टेबल ज़्यादा होगा। अनलाइक चार्जेस जितना क्लोज होंगे, जितना क्लोज होंगे, क्लोज होने से क्या होगा? अट्रैक्शन। क्लोज होने से क्या होता है भैया? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन से क्या होता है? एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज बोले तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी भाई। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में यही कहना चाहता हूँ भाई, वो वाली कैनोनिकल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी जहाँ पे जो लाइक चार्जेस है वो दूर हैं और अनलाइक चार्जेस जो हैं पास में। अगर किसी कैनोनिकल फॉर्म में जो अनलाइक प्लस माइनस पास में ज़्यादा है तो वो वाली कैनोनिकल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, ये आपका फोर्थ रूल हो गया। अब मैं आपको अभी क्वेश्चन से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, फटाफट से रूल बता दिए। ये फिफ्थ वाला जो रूल है आपको स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट से रिलेट करता है। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, जब ये सारे चारों के चारों रूल टाई कर जाते हैं तो हम स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे आते हैं। तो ये 5 रूल आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये 5 रूल हेल्प करते हैं डिसाइड करने में स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड द कैनोनिकल फॉर्म्स। सो अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है एक, अभी क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास है 1-methoxy 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अब हमें इसके कैनोनिकल फॉर्म्स नीचे दे रखी हैं। तो पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आरएस इज द लीस्ट स्टेबल। आपसे पूछा लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा? लीस्ट स्टेबल मैं एक एक करके बता देता हूँ। ए CH2 प्लस CH प्लस CH डबल बॉन्ड CHO CH3। बी CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O प्लस OCH3। ठीक है, सी CH2 प्लस CH माइनस CH प्लस OCH3। डी CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस CH डबल बॉन्ड OCH3। अब देखो पूछा क्या हमसे पूछा भैया लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल बोले तो अब अपना देखो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था? पहले हमें क्या देखना है? नंबर ऑफ चार्ज, फिर ऑक्टेट रूल, फिर लोकेशन ऑफ चार्ज, फिर लाइक अनलाइक, फिर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। मैं पहला रूल देखता हूं अपना, क्या था? नंबर ऑफ चार्जेस। देखो हमें देखना है लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल बोले तो नंबर ऑफ चार्जेस जहां पे ज्यादा होंगे वो लीस्ट स्टेबल होगी। यहाँ पे देखो ये दो प्लस, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस, तो नंबर ऑफ चार्ज यहाँ पे कितने हैं? 4। बाकी सब में कितने हैं? 2। ऑप्शन आपका क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जहाँ पे चार्जेस ज़्यादा हैं तो सीधा बोलना है आपको क्या? ये वाला लीस्ट स्टेबल होगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो ए बी सी सब में 2-2 चार्जेस हैं, इसी वाले में 4 चार्जेस हैं, तो ये लीस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और कराता हूं, जैसे कि अगला क्वेश्चन है विच विल कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। देखो 4 स्ट्रक्चर दे रखे हैं। क्वेश्चन है विच विल कंट्रीब्यूट मोस्ट टू रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, मैंने आपको बोला था जो कैनोनिकल फॉर्म जितनी ज्यादा स्टेबल होगी वो उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगी रेजोनेंस हाइब्रिड में। क्वेश्चन आपके सामने है। ए दिस प्लस OCH3। बी ये स्ट्रक्चर ये सारी कैनोनिकल फॉर्म्स आपको बना के दे रखी हैं। कैनोनिकल फॉर्म्स आपको बनाने को नहीं आती, वो गिवन देंगे, स्टेबिलिटी पूछते हैं। OCH3 प्लस डी। अब देखो विच विल कंट्रीब्यूट मोस्ट, दैट मीन्स हमें देखना है जो सब में ज़्यादा स्टेबल होगी। जो सब में ज़्यादा स्टेबल होगी वही सब में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगी रेजोनेंस हाइब्रिड में। तो देखो अपने रूल पर आ जाओ। रूल नंबर 1 क्या कहता है? नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे भी 1, यहाँ पे प्लस 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 प्लस, तो नंबर ऑफ चार्जेस रूल नंबर 1 सबका मतलब नंबर ऑफ चार्जेस सब पे सेम है तो कैंसिल। रूल नंबर 2 पे आ जाओ, ऑक्टेट रूल। ठीक है, देखो इस वाले में ऑक्टेट रूल यहाँ प्लस है, इस कार्बन का ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं हो रहा तो इसका भी नहीं हो रहा, इसका नहीं हो रहा। बट इस वाले केस में देखो सारे कार्बन्स का ऑक्टेट रूल कंप्लीट है, यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा। यहाँ पे ऑक्सीजन पे CH3 डबल बॉन्ड
प्लस है ऑक्सीजन पे, बट ऑक्टेट टूल तो यार कंप्लीट है भाई, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक लोन पेयर है इस पे और एक प्लस है, ठीक है, तो इसका ऑक्टेट टूल कंप्लीट है, तो दिस विल बी मोर स्टेबल। हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन हो गया। सो अब मैं समअप कर देता हूँ कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। तो हमने देखा कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस की, उसको समझा हमने कि रेजोनेंस में हम करते क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट में होता क्या है, हम कैनोनिकल फॉर्म्स ड्रॉ करते हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। हमने सीखा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके 2-3 रूल होते हैं, वो भी हमने सीखा, और कैसे हम स्टेबिलिटी कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बीच में। सो थैंक यू।